Okay. So in aldehyde ketones कहाँ तक हो गया था हमारा? We did the reactions ना, I think nucleophilic reaction किया था. हाँ, sorry, ammonia and its derivatives was remaining, right? So reaction of aldehyde with ammonia and its derivatives. So generally आपके पास when you have a carbonyl compound plus you'll have nitrogen, it will be attached with 2 hydrogens and Z. तो आपके पास this bond will break like this and you are going to get R that is bonded to carbon with double bond nitrogen and Z. ठीक है, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है क्या? There is a 2,4 DNP test, right? Aldehyde and ketones give orange red PPT on reaction with 2,4 dinitro phenylhydrazine. Okay, 2,4 dinitro phenylhydrazine. ठीक है, ये orange red PPT होता है, which is going to show that our substance, whatever you are reacting, it is a aldehyde or a ketone. ठीक है, aldehyde या ketone, aldehyde and ketone, both of them they give this. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास. अब अमोनिया डेरिवेटिव में बहुत सारे डेरिवेटिव है ना, सबको तो नहीं कराएंगे. जनरली आपके पास क्या था? C double bond N and whatever is attached to nitrogen other than the 2 hydrogen is attached here. ठीक है, नेक्स्ट आप लिखिए रिडक्शन. देखते हैं रिडक्शन. So in reduction what happens? Reduction में सबसे पहले आपका reduction to alcohols. Reduction to alcohol. So we have aldehyde that is going to give you, and then H2O that is going to give you 1 degree alcohol, CH2OH, and if you have ketone that is going to give you two degree alcohol. ठीक है, so aldehyde से 1 degree alcohol and ketone से 2 degree alcohol, है ना. ये चीज हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में भी देखा था. अब उसके बाद जो दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, दीज आर नेम रिएक्शंस, दैट इज रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन. एक है आपके पास क्लीमेंसन रिडक्शन. क्लीमेंसन रिडक्शन में आपके पास क्या होता है? यू हैव R. Now the carbonyl compound, that is C double bond O, R plus, zinc amalgam in the presence of HCl. You're going to get R CH2R. ठीक है, दूसरा है आपके पास वुल्फ किशनर. Here also you will have sorry, R C double bond O and R. This R can be C, एक R dash कर देते हैं यहाँ पे. ठीक है, so this R dash can be R, but it can be hydrogen also. So aldehyde और ketone दोनों ही के लिए होता है. Now if you are going to react this with, first of all, NH2 NH2. ठीक है, after NH2 NH2
Secondly, KOH and heating. KOH or NaOH and heating, you are going to get what? RCH2 R dash. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास क्या? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में नंबर 1 एल्डिहाइड. Now aldehyde is more reactive, that is why it can react even with what? It can react even with mild oxidizing agent. Aldehyde is, it reacts with oxidizing agents. ठीक है, या फिर आप OA लिख लीजिए इसको. Oxidizing agent and it gets converted to carboxylic acid. ठीक है. So what are these oxidizing agents that we can have? The oxidizing agent that you can have is HNO3, KMNO4, K2Cr2O7, etc. Other than that, you can also have, which is important, the tolerance reagent. And also you can have filling solution. Tolerance test and filling solution, right? No. जो important है आपका, दोनों में से हम बता देते हैं. You have tolerance test. Tolerance test में आपके पास RCHO. Now this R can be alkyl and this also can be aryl group. ठीक है, दोनों हो सकता है. This is going to react with what? It is going to react with AgNH3, AgNH3 whole twice positive charge. It is going to give you R, C double bond O and O negative. ठीक है. प्लस इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक Ag भी आएगा. This is Ag, which is the silver mirror. और इस वजह से इसको silver mirror test भी बोलते हैं. Okay, so this is tolerance test. Now next you have. आपको ये भी पता होना चाहिए. This ketone does not give. Ketone does not give. This test. ठीक है. टॉलरेंस टेस्ट हो गया. नेक्स्ट लिखिए फिलिंग्स. फिलिंग टेस्ट. ठीक है. फिलिंग टेस्ट में इंपॉर्टेंट क्या है? फिलिंग टेस्ट में इंपॉर्टेंट है दैट फिलिंग टेस्ट इज ओनली गिवन बाय aldehyde which have alkyl group, not aryl groups. You have R, C double bond O and hydrogen. Okay, so this R group, it should be only alkyl. ठीक है. What is the reagent? इसमें filling solution एक A होता है and solution B होता है. बेसिकली इसमें क्या रहता है? कॉपर 2+ रहता है. ठीक है. कॉपर 2+ रहता है and then it gives you R, C double bond O, O negative plus copper 2O. तो copper 2+, यहाँ पे देखिए this is copper what? Here copper is copper 1. ठीक है. copper +1 होता है. So it is red brown in color. ठीक है. This is red brown in color, जिसकी वजह से हमको क्या पता चलता है? That it is getting oxidized and this is getting reduced. तो copper 2+ filling solution को क्या करता है? Aldehyde, it reduces the filling solution. ठीक है. Similarly, tolerance reagent को भी वो क्या करता है? Reduce करता है. It can reduce tolerance reagent and filling solution. यहाँ पे important बात क्या है? Aromatic aldehyde लिख लीजिए. Aromatic aldehyde and ketones do not give Felling's test. ठीक है. For example, if you have CHO and if you have benzaldehyde, then if you react this with Felling test, this is going to give you red brown PPT. और ये Felling test से this will not react.
Done everyone? Yes or no? Please tell me. Done, sir. Okay. Right, next. The haloform reaction. Now, haloform reaction में कुछ भी हो सकता है. You can have C double bond O and aldehyde or ketone, but उसमें क्या होना चाहिए? This group होना चाहिए. CH3, C double bond O, and this R, this can be some alkyl group. This can be alkyne or hydrogen also. ठीक है. When you react this with NaOX, ठीक है. अच्छा, NaOX के साथ रिएक्ट करेगा. अच्छा, NaOX कैसे बनता है इसको भी ध्यान रखिए. If you have NaOH plus X2, इससे क्या बन जाएगा? NaOX बन जाएगा. ठीक है. If you have iodine, तो यहाँ पे आपको आयोडीन लगा देना है बस. ओके. सो यू कैन गेट आइदर दीज टू रिएजेंट्स, इन दोनों को भी साथ में यहाँ पे लिख सकते हैं, एरो के ऊपर नीचे, या फिर इसको लिख सकते हैं NaOX को सीधा. ठीक है. सो बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू गिव यू द सेम थिंग. एंड यहाँ पे आपके पास बेसिकली क्या होगा? दिस CH3 एंड C डबल बॉन्ड O, ये आपका ऐसे टूट जाएगा. This will break like this and it will from CHI3, sorry, X लिया तो X3 बन जाएगा यहाँ पे, प्लस R COOH. ठीक है. Now इसमें बेसिकली एक जो इंपॉर्टेंट, दैट इज आयोडोफॉर्म. Iodoform test given by substance having CH3 C double bond O fragment. ठीक है. तो कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए. डबल बॉन्ड O, NaOI CHI3 plus 1 2 3 कार्बन COOH. सिमिलरली आपके पास अगर you have acetophenol, तो you have this fragment, तो यहाँ से CHI3 plus benzoic acid. ठीक है. बेंजोइक एसिड तो नहीं बनता सीधा, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव. ठीक है. It will be ion until unless you add water. But it doesn't matter that much. मीन आपके पास ये इंपॉर्टेंट है. This is yellow PPT. चलिए. Now also remember, iodoform test is also given by alcohols with CH3COH टाइप का. अगर आपके पास अल्कोहल होगा, then this is also going to give you what? This is also going to give you the iodoform test, because basically it is a oxidizing agent. देखिए CO नेगेटिव में बन जा रहा है, right? It is an oxidizing agent. Now since it is an oxidizing agent, this alcohol will be converted to COH will be converted to C double bond O, and that is why this is also going to give you what? Iodoform test. Now next is aldol reaction या फिर aldol condensation. And condensation. ठीक है. तो आई होप आप लोग को याद होगी किस तरह से करना है. इसमें बेसिकली क्या होना चाहिए? देयर शुड बी
at least one alpha hydrogen. For example, I have CHO, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे this is the alpha carbon and it has hydrogen. So this can give you what? This can give you aldol reaction or aldol condensation. But if I have C double bond O and both of these are hydrogens, तब यहाँ पे alpha carbon ही नहीं है, so this is not going to give you aldol reaction. And these type of substances, these give Cannizzaro reaction, ठीक है, और जिसमें alpha hydrogen होता है वो aldol देते हैं. Okay, let us see this reaction how it can go through. आपके पास है CH3 कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन. ओके, ये कर लिया आपने. अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल यू हैव डायरेक्टली मेक व्हाट, यू हैव टू डायरेक्टली मेक, लेट अस सपोज, द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और फिर सामने आप इसके क्या रख दीजिए, अल्फा हाइड्रोजन. अल्फा हाइड्रोजन कौन सा, ये वाला, तो आपने रख दिया CH3 बॉन्डेड टू CHO, ठीक है. तो यहाँ से आपके पास ये जो 3 हाइड्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन ये ले जाएगा, और आपको मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन विथ हाइड्रोजन एंड CHO, और यहाँ पे इसका हाइड्रोजन एज इट इज. फर्स्ट स्टेप में एनी बेस दैट शुड हैव OH नेगेटिव, ठीक है, डाइल्यूट NaOH ले लीजिए आप. एक बेरियम हाइड्रोक्साइड भी जनरली एग्जाम्स में देते हैं, दिस इज ऑल्सो हैविंग OH नेगेटिव, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं. सेकेंड केस में आपको बस हीट कर देना है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सम एसिड और समथिंग, यू कैन जस्ट हीट इट एंड इट इज गोइंग टू गेट लिबरेटेड. बट इफ यू वांट टू सी बोथ ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो पहले आप देखिए CH3 कार्बन, you have double bond O, hydrogen plus देखिए एक के कार्बोनिल कार्बन को खोल के लिखना रहता है और दूसरे मॉलिक्यूल के आपको अल्फा कार्बन को खोल के लिखना रहता है. सो यू राइट इट लाइक दिस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड CHO. बस बेसिकली क्या होगा यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख दीजिए, दिस हाइड्रोजन विल गो टू दिस ऑक्सीजन एटम और आपको मिल जाएगा CH3 कार्बन विद OH, और इन दोनों कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा. नाउ दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू one hydrogen and a new bonds with this carbon which has 1 and 2 hydrogen atoms and then CHO. बाकी आप इसको हीट कीजिए तो यहाँ से OH निकल जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, it can remove from here also, but since this is more substituted it will form more stable alkene, that is why the major product will have this one CH3, ये OH निकल जाएगा और इन दोनों के बीच में CH double bond CH2 CHO. This is alpha beta unsaturated हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर इसी को क्या बोलते हैं, एल्डोल. बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. इफ यू हैव एल्डिहाइड, ठीक है, और आपने को सिर्फ उन्होंने क्या दिया, डाइल्यूट NaOH, तो आपको क्या बनाना है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. और सिमिलरली अगर आपको एल्डिहाइड है, डाइल्यूट NaOH है, एंड साथ में नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में हीट भी दिया है, then you have to make what, then you have to make alpha comma beta unsaturated aldehyde, ठीक है. सिमिलर चीजें होंगी किसके साथ, सिमिलर चीजें होंगी आपके पास कीटोन के साथ भी. You can take a reaction, ठीक है, you have this. अब देखिए हम बहुत सारे तरीका बता रहे हैं, जो तरीका आपको सही लगे आप उस तरीकों को अपना लीजिए.
ठीक है। इफ यू जस्ट वांट टू राइट इन द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, अगर आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में लिखना है तो फिर यू हैव दिस कार्बोनिल कार्बन, और इस कार्बोनिल कार्बन के पास ना यू विल हैव अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना, 2 अल्फा हाइड्रोजन है आपके पास। एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, इसको ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखिए, कार्बोनिल कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, इन दोनों के पास है। नाउ यू आर गोइंग टू मेक अ बॉन्ड बिटवीन देम, ये हो जाएगा OH, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, एंड दिस विल बी एज इट इज कीटोन, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, दिस इज विथ NaOH। सेकेंड स्टेप में आप क्या ऐड कर देते हैं, सेकेंड स्टेप में हीट कर दीजिए। सो व्हाट इज द अल्फा कार्बन, यहाँ पे आपके पास दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा से आप क्या निकाल दीजिए, OH निकाल दीजिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, एंड देयर विल बी डबल बॉन्ड बिटवीन देम। तो 1 and 2 कार्बन आटम, ये डबल बॉन्ड बन गया, एंड हियर यू हैव द कीटोन। डोंट वरी कि स्ट्रक्चर दिख कैसा रहा है, ठीक है, प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट। स्ट्रक्चर को ठीक करना वो बाद में आप कर लेंगे आराम से, बट स्टार्ट कीजिए इस तरह से। ओके, स्टार्ट इट लाइक दिस, कार्बोनिल कार्बन अल्फा कार्बन दोनों को आपने साथ में रख दिया, एंड देन यू कैन जस्ट ऐड देम। तो यहाँ पे हो गया आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। And now this is alpha comma beta beta unsaturated कीटोन, ठीक है। तो सिर्फ अगर आपके पास बेस दिया है, या फिर यू हैव बीन गिवन NaOH या फिर BaOH whole twice, या फिर KOH dilute है, then all of these are going to give you first of all beta hydroxy ketone, then on heating it is going to condense, which is going to leave away the water, and आपको क्या मिल जाएगा, बीटा अल्फा बीटा unsaturated ketone। ओके, आई होप यू हैव डन मल्टीपल, इसमें आपने प्रैक्टिस किया होगा अच्छे से, हमने तो कराया था भाई, ठीक है, काफी एग्जांपल्स दिए थे हमने, आपको बताया था किस तरह से करना है। Okay, so please practice this if you have not practiced till now. Now, moving on, right next. Sir, ये can you सवाल just scroll up, please? भूल गए थे अब्दुल रहमान, आज क्लास है आप, ये अब्दुल रहमान जी सर। भूल गए थे। ओहो, सैफ आप भी भूल गए थे। ये सैफ, No sir, like I saw for the link, but it didn't came. I thought you didn't have class. You didn't conduct class right now. व्हाट, हमने, हाँ, आई डिड नॉट अपडेट इन द ग्रुप, बट क्लास डेली ही है ना, सिर्फ फ्राइडे को नहीं है। हाउ वाज योर फेयरवेल सैफ? Yes sir, it was good. आपको कुछ टाइटल मिला? टाइटल देते हैं कि नहीं देते आपके यहाँ? No sir. They don't give you titles. Okay. How many students are there in 12th standard, sir, आपके स्कूल में? So in science stream there are only 28 students in boys. What? Only 28? I'm talking about science sir. Commerce, another 11 are there. Commerce में only 11 students. Yes sir. Your section, the whole school. And the whole school. I'm talking only Complete. boys here sir. Girls I don't know. हाँ, तो गर्ल्स में फिर उतने ही होंगे, 30 होंगी, 25 होंगी, 50 होंगी, ज्यादा क्या होंगी? Okay, this is, कौन सा स्कूल है आपका सैफ? Yara International School sir. यारा इंटरनेशनल स्कूल। What about you, अब्दुल रहमान, आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? सर 3 सेक्शंस, सर 3 सेक्शंस है साइंस के। 3 सेक्शंस हैं। With how many students? 50 students? Yes sir, 40 each. 40 each. आई थिंक लोअर स्टैंडर्ड्स में बहुत होते हैं ना, लोअर स्टैंडर्ड्स में आई थिंक। हाँ हाँ, अच्छा, रियाज में ये हो सकता है कि रियाज में बहुत सारे स्कूल हैं। हाँ, Yes sir, there are many schools sir. समाइला, यू आर इन दमाम राइट? Yes, sir. आपके में कितने हैं? So I बच्चे? think girls and boys का मिला के it's around 650. हाँ, सी दमाम में और लगता है कोई और स्कूल नहीं है ना? So सबसे बड़ा हमारा ही स्कूल। ओ भाई, सबसे बड़ा आपका ही है, बट इट इज द सेम स्कूल आई थिंक। ये अब्दुल रहमान इज आल्सो इन इंडियन इंटरनेशनल स्कूल रियाज, राइट? Yes sir. So but समाइला, दमाम का बड़ा है? Yes sir.
Okay. I've never like अच्छा मतलब हरम में मक्का और मदीना में नहीं कोई रहता है like रहते हैं बट मोस्ट ऑफ द पीपल शिफ्ट हियर दमाम रियाद में. दमाम रियाद जद्दा. Yes. Okay. Because I never got to teach anyone from Makkah or anyone from Medina. I've taught, I mean, in Saudi, I have taught from mostly these three places only: Dammam, Riyadh, and Jeddah. The offices would not be there. ना हाँ ये हो सकता है जो I mean जो subcontinent से जा रहे हैं अगर मक्का और मदीना में, then they are not into very well paying job. Maybe that is the thing, because वहाँ पे अगर construction के वर्क बहुत ज्यादा होते हैं तो अब इंजीनियर्स कितने ही होंगे फिर कंस्ट्रक्शन के वर्क्स में. Done, everyone? Yes, sir. Wait a question. This is for क्रॉस aldol, ठीक है ना. तो क्रॉस aldol में एक सवाल दिया था. So this is your benzaldehyde. Benzaldehyde से तो नहीं होगा. And then you have acetophenone, ठीक है. And it is also substituted acetophenone, जहाँ पे आपके पास you have double bond O, CH3, and it is para substitute. यहाँ पे para position में आपके पास CH3, ठीक है. तो आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है. This cannot give the alpha hydrogen because इसके पास alpha hydrogen है ही नहीं. इसके हम लोग किसको elaborate करके लिखेंगे? कीटोन. इसके aldehyde को elaborate करके लिखेंगे. So we have this benzene, C double bond O, and hydrogen ऐसे लिख दिया आपने. और यहाँ पे आपके पास this is the alpha hydrogen, ठीक है. इसको आप सामने रखिए with two hydrogens, ठीक है. एक हाइड्रोजन यहाँ पे. This is bonded to carbon double bond O, which is further bonded to the benzene ring, which is further bonded to CH3, ठीक है. मेनली देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना एक तो रिएक्शंस के नाम हम पता है, वो अलग चीज है. रिएजेंट पता है, प्रोडक्ट पता है. दूसरा आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इस तरह से ड्राइंग बनाना कि आप सही सही मैपिंग कर रहे हो चीजों का, ठीक है. कि ये दिस एंड दिस आर द सेम थिंग. CH3 से स्टार्ट किया, CO, फिर फिनाइल, फिर CH3. ओके. नाउ यू जस्ट नीड टू फर्स्ट स्टेप में आपके पास डाइल्यूट NaOH, सेकेंड स्टेप में आपके पास हीट. यहाँ पे क्या बन जाएगा? You have benzene ring with carbon atom which has one hydrogen doubly bonded to carbon atom which has another hydrogen. Then it is further having a C double bond O and the benzene ring and then the CH3. ठीक है. इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए तो फिर हो जाएगा. Also if you want to write things, क्या बोले हम, more clearly, या फिर आपको अगर बहुत ज्यादा cumbersome नहीं बनाना है, then you can write pH, फिनाइल को, है ना. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? pH which is having C double bond O and hydrogen ऐसे, इस तरह से. So, right next, the Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction में there should be concentrated NaOH या फिर KOH होना चाहिए, and there should be no alpha hydrogen, ठीक है. There should be no alpha hydrogen, and this is an example of what? It is an example of disproportionation reaction. Disproportionation reaction, ठीक है. Disproportionation में क्या होता है? एक सेम सब्सटेंस का, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव HC double bond OH and another HC double bond OH. You will use 2 moles, ठीक है, in concentrated KOH. एक का इसमें क्या बन जाएगा? एक का इसमें ऑक्सीडेशन होगा, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? You will get C double bond O, carboxylic acid, but it is in the basic condition, that is why this will be O negative and K positive. Plus एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बन जाता है? You will get alcohol. तो एक कार्बन का अल्कोहल CH3OH. Okay. Similarly, if you have benzaldehyde,
CHO, तो बेंजल्डिहाइड के कॉन्केव H, ठीक है, बेंजल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनेगा बेंजोइक एसिड प्लस बेंजाइल अल्कोहल, कार्बन आटम एंड देन OH। मतलब एक सेकंड, जैसे बेंजोइक एसिड नहीं लिखना चाहिए हमको, O नेगेटिव एंड K पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा इसमें। दिस इज सोडियम बेंजोएट एंड देन यू हैव द अल्कोहल। चलिए अब कुछ जल्दी जल्दी केमिकल टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। द कॉमन केमिकल टेस्ट, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। इथेनॉल में यू विल हैव CH3CHO, प्रोपेनॉल में यू विल हैव CH2CHO, ठीक है। तो हियर यू हैव दिस फ्रैगमेंट CH3 C डबल बॉन्ड OH। इस फ्रैगमेंट की वजह से क्या देगा ये, दिस इज गोइंग टू गिव यू, विल गिव, कौन सा टेस्ट बताइए, CH3 C डबल बॉन्ड हो रहता है तो कौन सा टेस्ट देता है, अरे क्या हो गया, विल गिव, भूल गए, So CH3 iodoform. हाँ आयोडोफॉर्म, है ना। देखिए आप ना ऐसे अगर उन्होंने कहा ना कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश या फिर गिव अ केमिकल टेस्ट, तो फिर ऐसा मत लिख के आ जाइएगा आयोडोफॉर्म टेस्ट बस, ठीक है। बेटर वे ऑफ राइटिंग एवरीथिंग विल बी, वेट अ सेकंड, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा टेस्ट होता है, फिर आप ऐसे लिखिएगा, NaOI येलो PPT दे देगा ये, राइट। और यहाँ पे अगर हम NaOI लिखेंगे then there will be no reaction, ठीक है, there will be no reaction for this, okay, you will write iodoform test, ठीक है। तो उनको मार्क्स डिडक्ट करने का कोई भी हम लोगों को मौका नहीं देना है। सेकंड लिखिए, benzaldehyde and let us suppose you have benzaldehyde and ethanol या फिर प्रोपेनॉल कुछ भी है, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड एंड इथेनॉल में क्या करेंगे बताइए, इथेनॉल, सॉरी हाँ पहले इथेनॉल अच्छा एग्जांपल, इथेनॉल में आप आयोडोफॉर्म भी कर सकते हैं, बेंजल्डिहाइड नहीं देगा तो प्रोपेनॉल लिख लेते हैं हम, है ना, प्रोपेनॉल, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड में अगर आप फेलिंग टेस्ट करेंगे तो नहीं देगा ये, बट इफ यू हैव फेलिंग सोल्यूशन यहाँ पे देन इट इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, कॉपर प्लस 1 का क्या होता है, क्या PPT मिलता है बताइए, सॉरी रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, हाँ रेड ब्राउन, है ना। प्रोपेनॉल आपको इन सॉल्यूशन का टेस्ट देगा। थर्ड लिख लीजिए, इफ यू हैव benzaldehyde and acetophenol, है ना। तो काफी टेस्ट हो सकते हैं यहाँ पे, एक टेस्ट आप ये दे सकते हैं कि बेंजल्डिहाइड आपका टॉलेंस टेस्ट दे देगा, राइट, टॉलेंस रीजन का टेस्ट दे देगा, एंड एसिटोफेनॉन आपका टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। अदर रिएक्शन जो चीज हम कर सकते हैं यहाँ पे क्या, बेंजल्डिहाइड अगर हम आयोडोफॉर्म के साथ रिएक्ट करें NaOI तब ये कोई रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन एसिटोफेनॉन में CH3 C डबल बॉन्ड होता है तो दिस इज गोइंग टू गिव यू NaOI, दिस इज गोइंग टू गिव यू येलो PPT, है ना। यहाँ पे ये सिल्वर मिरर टेस्ट दे देगा, ठीक है। सो दो सबसेट के लिए मतलब एक से ज्यादा टेस्ट भी आप यूज कर सकते हैं, बेसिकली बस यही है। अब तो नेक्स्ट वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग नेक्स्ट क्लास पे ये पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए एक सवाल आया था, थोड़ा सा हमको याद है, हम आपको बता दे रहे हैं। देयर वाज अ एक सब्सटेंस है जो कि जिसका फॉर्मूला C9H10O, और इसके बारे में कहा गया है सबसे पहले, इट गिव्स
2,4 DNP, 2,4 DNP। इसका क्या मतलब हुआ? आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, सही है, दोनों में से कुछ एक ही हो सकता है। सेकंड, इसने बोला कि इट रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट। इसका मतलब क्या है? दिस इज एल्डिहाइड है या कीटोन है, बताइए। अगर टॉलरेंस रिड्यूस कर रहा है तो Aldehyde. इट इज एन एल्डिहाइड। सो देयर इज एन एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे, है एल्डिहाइड है। थर्ड इन्होंने बोला इट गिव्स कैनिजारो रिएक्शन, यानी कि क्या है? नो अल्फा हाइड्रोजन। करेक्ट है? यस और नो प्लीज टेल मी। Yes. ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला, लास्ट में बोला, फोर्थ में, ऑन रिग्रेस ऑक्सीडेशन इनको मिलता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड डाइबेंजोइक एसिड, COH यहाँ पे भी और COOH यहाँ पे भी। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक तो हमारे पास एल्डिहाइड है ही, है ना, एक एल्डिहाइड ग्रुप है हमारे पास। दो एल्डिहाइड ग्रुप होता तो यहाँ पे O2 लिखा रहता, लेकिन दो एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है हमारे पास। एंड ऑब्वियसली इफ देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, और अगर एल्डिहाइड है और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दैट मींस इट इज गोइंग टू बी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो नो अल्फा हाइड्रोजन एंड एल्डिहाइड किस केस में हो सकता है? इफ यू हैव बेंजल्डिहाइड। तो ये इतना हमारे पास क्लियर हो चुका है, राइट, इतना क्लियर हो चुका है। दैट मींस वी हैव टेकन हाउ मेनी कार्बन एटम्स? एक कार्बन और इधर 6 कार्बन। वी हैव कंसिडर्ड 7 कार्बन एटम्स, ठीक है, एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन्स? वी हैव 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन्स, है ना। इस केस में 6 है। अच्छा, एक यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन होगा, ये हम लोग को पता नहीं है क्या होगा यहाँ पे, ना, वी डोंट नो दिस व्हाट सब्स्टिट्यूशन इज हियर। सो वी हैव कैलकुलेटेड फॉर, एक सेकंड, 1 2 3 4 हाइड्रोजन्स एंड 1 ऑक्सीजन। कितना बच गया? C9H10 एंड O। तो 9 में से 7 गया तो कार्बन बचेगा आपके पास 2 और 10 है। C9H10 नहीं, अच्छा, 1 2 3 4 और ये 5 है ना, 5। सो you'll have H5। ठीक है, तो C2H5 बचा हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास क्या लग जाएगा? C2H5। CH3 and then CH2, ethyl group लग जाएगा। You can write C2H5 also like this। ठीक है, I think this question we did on some class also। Okay, so please write this down। So how did you know it is benzaldehyde? बेंजल्डिहाइड, क्योंकि देखिए एल्डिहाइड है हमारे पास, ठीक है, Yes. और नो अल्फा हाइड्रोजन। अब सोच के देखिए, एल्डिहाइड और नो अल्फा हाइड्रोजन, तो एक केस ये हो सकता है ना, लेकिन ये तो है नहीं, बिकॉज आप मतलब इतने ही में खत्म हो जाएगा फिर, राइट। Yes, sir. ठीक है, तो दूसरा केस क्या हो सकता है? बेंजल्डिहाइड हो सकता है। और दूसरा बेंजल्डिहाइड ये भी, क्योंकि उन्होंने क्या क्या, ऑन रिग्रेस ऑक्सीडेशन आई एम गेटिंग डाइबेंजोइक, मतलब बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूट, यानी इसमें से एक ना एक जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है वो पहले एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ओके, एंड आई कैन नॉट से दैट बोथ ऑफ देम, ये स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे फिर 2 ऑक्सीजन हो जाते हैं एंड वी हैव ओनली 1